Students, our today class is based on my block. Our today topic is my block, and in today class we will discuss how we can create a my block in Lego Mindstorm Education EV3 software. What are the uses of my block and how we can create this my block in this software? Correct. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी शॉर्ट वे, इन अ वेरी वेल डिफाइंड वे कि किस तरीके से हम लेगो माइंडस्टॉर्म एजुकेशन EV3 सॉफ्टवेयर के अंदर माई ब्लॉक को कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस फीचर इन दिस while complex programming, during the complex programming. Okay, so it's a very important concept. A my block is a way to build your own blocks within the Lego Mindstorm EV3 programming software. आप अपने खुद के ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं Lego Mindstorm. जैसे कि right now you can see these are the blocks like action block, flow control block, and sensor block, and in which various kind of blocks are here like medium motor, large motor, steering block, sound block. So many blocks are here which are defined, predefined blocks. But my block is a kind of feature where we can create their own blocks, right? इस माई ब्लॉक फीचर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम खुद के ब्लॉक्स बना सकते हैं. अभी तक आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप ब्लॉक्स यूज कर रहे थे जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है सॉफ्टवेयर में. बट ये जो फीचर आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये फीचर एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप अपने खुद के ब्लॉक्स बना सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स एंड कंबाइंस देम इनटू अ सिंगल ब्लॉक. आप इसके अंदर क्या करेंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, which is available from the light blue my block. Here you can see this one is dark blue and this one is light blue. तो जो भी ब्लॉक आप क्रिएट करेंगे वो आपको इस लाइट ब्लू ब्लॉक में शो होगा, राइट? ये जो आपका पैलेट है दैट इज माय ब्लॉक पैलेट. तो जो भी आप ब्लॉक क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा. राइट नाउ यू कैन सी नथिंग इज हियर, राइट? जब हम इसको डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी वन ब्लॉक, whatever block you have designed, which is available in this block palette. Okay, so my block builder can be used within the software to create my blocks. My blocks are especially handy when you have a largely complicated program and you need to simplify the user interface to make it more readable. क्या करते हैं, जब आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ब्लॉक्स होते चले जाते हैं, आपकी कोडिंग बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जाती है, तब उस केस में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आप उसको इजीली रीडेबल बनाने के लिए माई ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं. ठीक है. It is also very useful when you have a bunch of common functions that can be simplified and reused within a single block in the programming software. Like एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपका एक टास्क है जिसमें आपका रोबोट क्या करता है स्टूडेंट्स, it will go straight, right? I'm taking steering block for that, you know very well, right? And after that आप उसको कितना बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, that's why my steering value is 0, my speed is 50, that is fine. और मैं उसको कितना सेकेंड्स स्ट्रेट ले जाना चाहती हूँ, that is for example 10 seconds, correct? And after that I want to take a turn, my robot want to take a turn. So for that again I'm using steering block and I'm choosing on for seconds, and after that I will change the value of
steering. Why? Because if I am providing the negative value, it will take left turn. If I am providing the positive value in steering block, then it will take left turn, right? Right turn, sorry. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो कि उसको स्ट्रेट लेकर, मतलब टर्न देगी, उसको टर्न प्रोवाइड करेगी। लाइक 51 मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, करेक्ट। तो ये जो टास्क है स्टूडेंट्स, आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या चाहती हूँ कि ये सेम टास्क मैं कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, लाइक मैंने यहाँ से कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से फिर से एक और कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर कुछ 3 प्रोजेक्ट्स रनिंग में है और मुझे क्या करना है, यही सेम टास्क मुझे बार बार करना है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बार बार क्रिएट करने के बजाय, या फिर मैं इसी प्रोग्राम में मेरी बहुत लंबी कोडिंग हो चुकी है, मेरे पास और थोड़े 2-3 ब्लॉक्स इसमें हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक साउंड ब्लॉक यूज किया हुआ है, मैंने यहाँ पर कोई मोटर यूज की हुई है, कोई सेंसर यूज किया हुआ है, तो एक पर्टिकुलर कोड बन चुका है, राइट। तो अगर इस कंप्लीट इंटायर कोड को मैं एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो भी मैं माई ब्लॉक यूज कर सकती हूँ। इफ आई वॉन्ट टू रीयूज इट इन अ वेरियस प्रोजेक्ट, देन आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ माई ब्लॉक। ठीक है, तो माई ब्लॉक तो हम इसलिए बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, दैट इज द मेन टास्क, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट rule, right? So you have to listen a very careful way. Firstly, you have to select the particular code जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ना सिंगल ब्लॉक। लाइक ये पूरा कोड है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा कोड है, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस कोड, नॉट दिस प्ले बटन। आपको ये प्ले बटन इसके साथ सेलेक्ट नहीं करना है, ओनली यू हैव टू सेलेक्ट all these codes. Okay, this is the first step, and after that you have to go in the tools menu. Here's the menu bar where we have file option, edit option, tools option, help option, but in which we have tools. So just click on that, and after that you will receive a drop down list where we have so many options like sound editor, image editor, my block builder, firmware update, and so on, right? So for that you have to choose my block builder. आपको क्या करना है, यहां से क्या चूज करना है, my block builder। टूल्स में से आपको चूज करना है my block builder। just click on that। when you click on that you will receive a complete block। you can see here are the block icons। जो आप एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, आप उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यू हैव टू चूज इट। लाइक if you want to choose this one or large motor or medium motor or steering block or sound block or display block or any sensor like touch sensor, ultrasonic sensor, जिस चीज से भी रिलेटेड आपने वो कोड प्रिपेयर किया है, you have to choose that particular icon for understanding, right? like मैंने स्टेयरिंग ब्लॉक में बना रही हूँ, राइट। अभी स्टेयरिंग ब्लॉक बना रही हूँ, देन आई कैन यूज स्टेयरिंग ब्लॉक आइकन। जैसे ही मैं स्टेयरिंग ब्लॉक आइकन पर क्लिक करूंगी, यू कैन सी इट विल चेंज। if I will click on this icon, then it can change, it will change। okay, so right now my requirement is steering block, my requirement is what, steering block। so I'm clicking on that। now you can see here is the plus button, this will help you to add parameters। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्पीड इज सेम, डायरेक्शन इज सेम। फॉर एग्जाम्पल you want to change seconds, so you can add parameters, just click on that, you will receive a value। if you want to change स्टेयरिंग वैल्यू ऑल्सो, लाइक अभी यहाँ पर आप एक तो ऑन फॉर सेकेंड चेंज करना चाहते हैं, एक चाहते हैं कि स्टेयरिंग वैल्यू भी मैं चेंज कर सकूं, देन यू कैन ऐड वन मोर प्लस बटन, राइट।
तो यहाँ से आपका एक और पैरामीटर ऐड हो जाएगा फॉर मूविंग लेफ्ट और राइट, राइट, यू कैन जस्ट क्लिक हियर। तो यहाँ पर आप इसको राइट और लेफ्ट चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ आफ्टर दिस यू कैन प्रोवाइड द नेम ऑल्सो। अब आप कोई भी ब्लॉक क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका पर्टिकुलर नेम भी प्रोवाइड करना होगा। लाइक आई एम क्रिएटिंग हियर स्ट्रेट स्टेयरिंग, ठीक है। यू कैन नॉट प्रोवाइड अ स्पेस इन बिटवीन, अदरवाइज ये आपका नेम क्रिएट नहीं होगा। आप उसके अल्फाबेटिक्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट स्टेयरिंग नाम का एक ब्लॉक हमने क्रिएट किया है। इफ यू वांट टू प्रोवाइड एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस ब्लॉक यू कैन राइट डाउन हियर, like you can type here creating for moving straight, right, and after that you will click on finish button. You have done that and now you can see here is the single block. आपने एक सिंगल ब्लॉक बनाया है जिसमें आप अपने वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने क्या किया कि जो स्टेयरिंग ब्लॉक था उसको तो ये वाली वैल्यू दे दी, आपने स्टेयरिंग के लिए आपने ये क्रिएट किया था और आपने क्रिएट किया था ऑन फॉर सेकेंड्स के लिए, तो आपने उसको ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी, करेक्ट। नाउ you will move on to the light blue color block which we have discussed earlier. Just click on that. Now you can see पहले यहां पर कुछ नहीं था, ये ब्लैंक था, राइट। अभी आपने जो ब्लॉक क्रिएट किया है सेल्फ माई ब्लॉक, ये आपके सिस्टम का, आपके सॉफ्टवेयर का ब्लॉक नहीं है, राइट। ये वो ब्लॉक है जो आपने खुद से क्रिएट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट 3, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्ट 3 के लिए जा रही हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पर आपको कोई भी, एक सेकंड, कोई ब्लॉक यहाँ पर नहीं विजिबल है, राइट। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और अपने आप माई ब्लॉक को ओपन करेंगे तो आपको वो स्टेयरिंग ब्लॉक मिल जाएगा, स्ट्रेट स्टेयरिंग, जहां पर आप उसको कहीं भी यूज करना चाहते हैं। ये देखिए आप इसको, इस कोड, ये पूरा कोड इसके अंदर है, आप सिर्फ इनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, राइट। आप प्ले बटन का यूज करेंगे आपका वो एग्जैक्ट सेम कोड रन करेगा जो यहाँ पर करेगा। आप यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप 10 यूज करें, यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल -80 70 यूज करें, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो वैल्यूज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका वो पूरा ब्लॉक इस कंप्लीट ब्लॉक से काम करेगा, सेम काम करेगा जो वो ब्लॉक काम कर रहा था। वो पूरे मल्टीपल कोड को आपने एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करके कोड को लेस कर दिया, राइट, और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यूज, इसके नेम, किसी को भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं, हियर इज द ऑप्शन टू एडिट इट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो आपको वो वापस से सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिन पर आप काम कर रहे थे, राइट। If you don't want to edit it, just cancel it. And if you want to use the same block in various programs, so you can use, यहाँ पर हमने एक सेकेंड प्रोग्राम क्रिएट किया है एंड इन माई ब्लॉक
our straight steering block is available, right? But in projects you have to create a different my block. अगर आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे मल्टीपल, तो उसके लिए आप अपने अलग अलग माई ब्लॉक्स बनाएंगे. बट अगर एक ही प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं और आप उसको कहीं भी यूज करना चाहते हैं, आप अगर 10th प्रोग्राम में भी यूज करना चाहते हैं, तो आप वहीं से अपने माई ब्लॉक से उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपने ब्लॉक बनाया है अपने कोड को लेस करने के लिए. अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हम इसको क्यों यू कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं. जब हम एक कंपटीशन में जाते हैं और हमारा कोड बढ़ता चला जाता है, एक्सेस होता चला जाता है, थोड़ा एक्सटेंड होता चला जाता है, तब उस केस में हम ये माई ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि कोड को इजीली अंडरस्टैंडेबल किया जाए, रीड किया जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर इस टाइप के कम से कम 100 ब्लॉक्स हैं, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना बहुत टिपिकल हो जाएगा. और हर एक ब्लॉक को खोल खोल के आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ आपको वैल्यू चेंज करनी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एक माई ब्लॉक कंसिस्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे सारे कोड्स और सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं. ये एक ऐसा फीचर है जो हमें आगे बहुत हेल्प करेगा. आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर.